overseas people they want to invest in Emaar. तो इसकी क्या वजह है? Emaar itself is an international brand. Emaar is in 9 countries. Emaar is giving you a lifestyle. They are giving you the community living in a safe environment. Emaar says that live Dubai life in Karachi. एक ordinary इंसान है, उसे अपनी investment करनी है. What 3 steps would you recommend them as a new beginner? The proving needs to be done. What exactly are they looking for? Are they the end users or they are investors? Are they short-term investor or they can hold property for long? How secure is real estate? As you said कि उसके में बहुत ज़्यादा safety है. रियल एस्टेट में जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है वेरिफिकेशन का, जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो आप उसका सर्च सर्टिफिकेट निकलवाते हैं. How did you end up in real estate? I started my career with Emirates Bank as a banker. While staying in the bank, I managed to crack some good deals. And then I quit banking. I opened up my own real estate firm by the name of AQ Properties. Next 5 years के अंदर how do you see DHA area और E8 area जहाँ पे ईमार है, how development is going to take place? DHA has done a remarkable job. So DHA is continuously giving you the best. Welcome to Soul Scripts. Today we are going to have a conversation with a person who has made his mark in the world of real estate. अगर हम बात करें तो real estate किस तरह काम कर रहा है, how safe are your investments और कैसे एक आम इंसान अपनी wealth build कर सकता है through property. So without further ado, let's dive in to the world of real estate with some practical insights. We welcome Mr. Ali Kamar, who is working for Emaar right now. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Thank you so much for my introduction. And I would like to give my best advice to you. All right, let's dive in. First of all, I would like you to share your personal story that how did you end up in real estate? अच्छा देखिए, I would like to elaborate this thing because I started my career a bit earlier when in my teenage. I used to work for different organizations whenever I get any chance. जैसे मैंने O levels किया तो मेरा जो गैप आया, मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब कर ली. फिर कोई गैप आया तो मैंने जो है 2 से 4 महीने मैंने किसी और जगह इंटर्नशिप कर ली, किसी इमिग्रेशन फर्म में. तो इस तरह से वो जर्नी चलती रही. फिर जब मेरी प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट हो गई, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो आई स्टार्टेड माय करियर विद एमिरेट्स बैंक एज अ बैंकर. So I was in banking for about 11 years. But during banking, I realized that I am made for real estate actually, because I started developing interest in real estate more than as a banker. Although I was very successful in a very earlier stage, and at the age of 27, I became manager corporate investment banking in Park Libya Holding Company. But even though I was more keen to get more and more interest in real estate, and somehow I found some friends and they also motivated me. So while staying in the bank, I managed to crack some good deals. The Centaurus was launched in 2007 in Islamabad, and I was authorized dealer for them in Karachi, although at that time I was a banker in the Bank Al Falah. So then I finally managed to crack some good deals, and then I quit banking. I opened up my own real estate firm by the name of AQ Properties. Then I also entered into construction and renovation work, but mainly I'm a realtor and I love to do that because it's my passion. So the main thing is that one has to realize that what is the purpose, what is your nature, and what does you enjoy the most. So every day it's an adventure for me because I'm a socialize. I really like to socialize with people, and I like to meet with new people also, like interact with. So basically, you mean to say that you came into this field due to your interest, first of all, and secondly, you are a very socialized person. You love to meet people, and that's why you chose this field. क्योंकि इसके अंदर आपको अक्सर ऐसा होता है that you meet new people, you meet new clients. That's correct. And you get to learn from them a lot. That's as well. right. Yes, absolutely. अगर हम बात करें, there are many developments going on right now. अगर हम सिर्फ कराची की बात करें, पाकिस्तान के अंदर all over इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह हो रही है developments. कराची के उससे अगर हम बात करें तो there are lots of projects going on. ठीक है, particularly let's talk about Emaar. उसके अंदर भी काफ़ी projects अभी हो रहे हैं. So how is that different from all the things which have been going on? अगर हम किसी घर की बात करें और हम किसी अपार्टमेंट की बात करें, so there is a lot of difference. But हमने ये देखा है कि a lot of
overseas people they want to invest in Emaar. तो इसकी क्या वजह है? रीज़न बीइंग देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी होती है उसका आपने देखना पड़ता है कि लोकेशन क्या है, फिर डेवलपर कौन है। इमार इटसेल्फ इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। इमार इज इन 9 countries. They are built up like Burj Khalifa and all the major landmarks in Dubai especially and all over the world. So Imar has also developed an housing society by the name of Canyon Views in Phase 5 DHA Islamabad. So in Karachi, on the main sea view, on the main beach, it is perhaps the only project that has delivered apartments, and people, more than 1,000 plus families are living there. Plus Imar is giving you a lifestyle. They are giving you the community living in a safe environment. Your family and you yourself, you live there in a very secured environment, enjoying all the amenities like business lounge, like now the cinemas are also there in the new towers like Panorama and the Views. And they are about to give the delivery by the end of this year, next month probably. So in Imar you will find all kind of amenities like salons are there, banks are there. It's a gated, it's in boundary wall, it's a secured place. Plus you have a big promenade, you have different restaurants. So you don't need to actually go outside because the paddle court is also there, the kids play area, the community hall, the private beach. So basically we can say that if an overseas person wants to shift over here, they do not have to compromise on a lot of stuff. And यहाँ पर भी कोई अगर इंसान है, he or she needs to upgrade their lifestyle, or they want कि भाई एक ही छत के नीचे हमें हर चीज मिल जाए. So this is like what they are trying to look for. Yes, that's why Imar says that live Dubai life in Karachi, and that's correct, because almost you are getting all those things that you have in Dubai especially. Yeah, the kind of a lifestyle people live over there, hassle free. आपको व्यू अच्छा मिल रहा है, आप सेफ भी हैं, everything is nearby, you don't need to step out of there. Even sports and gym is there. So basically it's all under one roof. That's why people prefer to that's correct, buy stuff over there. ठीक है. एक ऑर्डिनरी इंसान है, ठीक है, उसे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है. So what 3 steps would you recommend them as a new beginner? Now, first of all, the probing needs to be done. What exactly are they looking for? Are they the end users, or they are investors? Are they short-term investor, or they can hold property for long? Do they want to go for the off-plan projects, or do they want any property that is ready to move? So there are so many things that a realtor should know before giving any advice. बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं that they want to buy something not for investment but to live in. Right. So what is the difference between both of them, और कौन सा ज़्यादा सही है? देखिए, usually every project has its own niche market, and the people there are investors are always there, and they are looking for opportunities. But the end users are also there. So the investors buy in bulk usually. And there are small investors also, there are big investors also, but the end users is looking for something that they are looking for like 10 years or 20 years for planning, the long term for the long term, okay, that they will be living there. So they look at each and everything, because they have to take their families, then they also consult their whole family before taking any decision, their children and everyone they take on board. ऐसा हो सकता है कि वो लोग short term investment के लिए भी they want to give it for rent, and later on maybe they want to live over there. Actually, there are 2 things that everybody should look into. One is the location, the developer's background, plus the appreciation in that area, like the expected appreciation and the past appreciation, plus the rental yield. The return on investment also depends on the rental yield. That you can compare, like if you are getting a rent in the Pearl Tower, then you can easily know that the future of Park Edge. Because obviously the new tower is more up to the mark and more updated, so obviously the rental would be higher than that. So you can easily calculate that what would be the rent in future. So you can see that Pearl Edge जो already बन चुका है उसके मुकाबले में let me correct you, the name is
Emaar has got Pearl Tower, Okay. then they have Reef Towers, then they have Coral Towers, and the panorama and the views are ready to deliver. And the only tower that is currently under construction is Park Edge. All right. So if we can say that panorama, uska already construction ho chuki hai, each and everything is done. So that would cost much more higher right now as compared to the Park Edge, which is a new developing going on. Definitely. All right. So आपने बात की that a lot of people want to give apartments on rent. ठीक है. There are two choices. As far as I've known people, कि कुछ लोगों को ऐसा होता है that they want to hold their property so that they can appreciate in the long run. All right. Either they want to give it on rent. Which one is involving less risk? There is no risk in real estate, honestly speaking. All if right. you choose the right property with the right documentation in the right location, so one can hold for long. It will give you more benefits. It will keep on appreciating. Plus, you will get the rental yield. The rent gets increased every year by the rate of 10% at least, depending on the mutual consent of both the parties. So people like the bankers, senior bankers, their banks, they pay the rents and everything. The multinationals, their executives, they try to live in a secured environment like Creek Vista. It could be Emaar. So there is a collaboration with the banks as well. Yes, because they actually they prefer that their executives, their president, their vice president should have a good living. So they pay their rent. So it gives benefit to the owner of the property, because such a class, such a good cream, they approach you for rentals. All right. So, and then you have to decide that to whom you have to give your property. So it's a good part that also the organizations are trying to think for their employees. Even and they TV want anchors, their executives to live a kind of a life that they always wanted. That's correct. Then it's a good thing. Yeah. ठीक है. अगर हम बात करें हाउ सिक्योर इज रियल स्टेट, एज यू सेड कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, लेकिन ये उस इंसान के लिए है जो कि अपनी चीज़ को ख़रीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख दे. ठीक है. इट्स नॉट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डेवलप. ठीक है. सो एक आम इंसान जब कोई चीज़ ले रहा है, ठीक है, what are some of the things या what are some of the risks that they should take care of? जैसे आपने बताया documentation is very important. तो आप उसके steps बता सकते हैं, like what is the first step that they should take कि कौन सी चीज़ वो verify करे so that they are not risk to litigation या कोई और fraud activities. Please shed some light on it. देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे DHA की, लेकिन अब DHA से बाहर भी कराची बहुत बड़ा है. ओवरऑल आप कराची से बाहर भी चले जाएं तो रियल इस्टेट में जो सबसे ऑथेंटिक तरीका है वेरिफिकेशन का, जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो आप उसका सर्च सर्टिफिकेट निकलवाएं. इवन बैंक भी जब आपको फाइनेंस करता है प्रॉपर्टी पे और कोलेट्रल रखता है तो वो उस प्रॉपर्टी का सर्च सर्टिफिकेट निकलवाता है. उसमें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल जाती है कि प्रॉपर्टी लेजिट है या उसमें कोई इशू है. तो वो बेस्ट तरीका है. उसके अलावा ये है कि जो भी अथॉरिटी जैसे DHA है या KD है, जो भी उसके अथॉरिटी के अंडर वो आता है, वहां से भी वेरीफाई करा सकते हैं आप. और फर्दर ये है कि आप जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं उसका एक प्रोसीजर होता है. आप उसका एक पहले आप अखबार में ऐड देते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में देते हैं कि किसी को अगर कोई क्लेमेंट है, कुछ है, वो लाजमी प्रोसीजर कीजिए, और वो है भी मस्ट. तो ये बिफोर यू बाय समथिंग, तो ये उसकी फुल जांच पड़ताल जो मतलब करके वो फिर आपने जब आपने सर्च सर्टिफिकेट निकलवा लिया, आप सेटिस्फाई हो गए, ठीक है, फिर भी आई बिलीव इन द प्रोसेस. सो वन हैज टू फॉलो द प्रोसेस. इवन दो आप सेटिस्फाई हो गए, सर्च सर्टिफिकेट है, सब आपके पास रिकॉर्ड आ गया, सब चीजें ठीक है. फिर जब आप होता क्या है कि हम जब डील होती है तो कंडीशनल चेक दिया जाता है. अच्छा. तो कंडीशनल चेक जो होता है वो कैश नहीं होता, वो एक बताने के लिए होता है कि आप सीरियस हैं. Okay. और ओनर आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज देता है. Okay. आप वेरीफाई करते हैं, फिर सेल एग्रीमेंट होता है. सेल एग्रीमेंट यूजुअली 10% पे होता है. ठीक है. अब वो एक्चुअल चेक देंगे आप पे ऑर्डर, उस 10% पे डील लॉक हो गई आपकी. अब उसमें टर्म्स कंडीशंस होते हैं कि जी 45 डेज में आप पेमेंट करेंगे, 60 डेज में करेंगे, 30 डेज में करेंगे, 10 डेज में करेंगे, वो लिखा होता है. अब जब आपने 10% पे एग्रीमेंट कर लिया, मीन्स कि अब डील लॉक हो गई है, फिर आप फौरन उसका ऐड देते हैं
इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी, उर्दू न्यूज़पेपर में भी, कि अगर किसी को कोई इशू है, अगर कोई क्लेमेंट है तो हमें बताए इस नंबर्स पे, या फिर इस अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। तो वो फिर उसमें आप जब वो 2 वीक्स का नोटिस भी लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो देन यू आर फ्री टू एंटर इनटू, मतलब एवरीथिंग इज क्लियर। आपने सारा प्रोसीजर पूरा किया है, अब आप उसमें आप डील को आप जाएंगे, आप पेमेंट करेंगे जिस दिन, उसी वक्त आपको ट्रांसफर होगा, सेलर जाएंगे, सेलर का थंब इम्प्रेशन होगा, हर चीज़ होगी। अगर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट ले रहे हैं जो अभी रेडी नहीं है, अभी उसकी डिगिंग होगी, वो टावर खड़ा होगा, तो उसकी एनओसीज चेक करें, सारी एनओसीज हैं कि नहीं है। जिस भी अथॉरिटी के अंडर आ रहा है, एसबीसी है, जो भी एमडीए के अंडर है, डीएचए है, जो भी इदारा एमडीए की प्रॉपर्टी जिसकी भी है, उसका बेस्ट तरीका ये सारी एनओसीज आप A to Z चेक करें उसकी। हाँ जी, सब चीज़ें हैं, दे आर अलाउड टू सेल, दे आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट, और फिर उस डेवलपर की पास हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल उसके जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो टाइम पे डिलीवर हुए कि नहीं हुए, उनमें जो लोग रह रहे हैं वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, क्वालिटी ऑफ क्या है उस प्रोजेक्ट की, डिलीवरी उन्होंने जो टाइम कमिट किया था उसमें दी कि नहीं दी, कोई बैड रिव्यूज तो नहीं है। अब तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उसमें भी आपको आइडिया मिलता है, लेकिन आप खुद भी वेरीफाई करा सकते हैं। अगर कोई कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स बना रहा है और उसकी पास हिस्ट्री भी अच्छी है, तो आपको एक माइंड आपका एक सुकून में होता है कि यार कोई ऐसी बात होगी नहीं, हर चीज अप टू लाइन है एंड दे नो देयर वर्क। यस, दैट वाज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान प्रॉपर्टी ले रहा है तो लोकेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। लोकेशन के अलावा ऑल्सो यू हैव टू लुक एट द स्पेस, ठीक है। उसके पास कोई एमिनिटीज़ तो नहीं है, या फिर उसके पास कोई कमर्शियल्स तो नहीं है, पीपल डू लुक फॉर इट। लेकिन अभी जो आपने कहा, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि जो इंसान उसको बना रहा है उसकी रेपुटेशन कैसी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ठीक है, व्हेन यू इन्वेस्ट समथिंग, आपने बहुत दिल से किसी जगह इन्वेस्ट किया है और वो आपको टाइम पे डिलीवर नहीं होता, या उसमें कोई रुकावट आ जाती है, सो योर मनी इज स्टक्ड, ठीक है। तो हाउ वुड यू शेड लाइट ऑन इट? आई वुड लाइक टू गिव यू a little bit elaborative answer. Coastal belt is very expensive overall in the world. Okay. So we have a beach here, sea view on the main view beach के avenue. भी तो होते हैं ना पैसे, तो व्यू के पैसे होते हैं। अच्छा, अब जैसे इमार है, वो तो आपको ये भी कमिट करते हैं, जो अच्छे डेवलपर होते हैं इमार जैसे, कि वो आपको ये भी देते हैं कि जी अगर हमने अपने टाइम पे आपको डिलीवर नहीं किया तो हम आपको रेंट पे करेंगे, मतलब वो उस पे ये भी क्लॉज डालते हैं कि वी विल पे यू रेंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। तो इस चीज से जो है वो कोई इंसान अपनी ऑथेंटिसिटी किसी भी उसके ऊपर जो है वो मार्क कर सकता है। यस, इट शोज दैट दे आर assured that they will give you delivery on time. This makes sense. They take accountability because good brands, they don't want to damage their reputation. They are very much concerned about their end users, their investors, and overall whoever is buying from them. So they make sure even if you go there to get an apartment on rent, तो आपका एक इंटरव्यू होता है। ये नहीं कि ओनर ने जिसको चाह दे दिया, इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में आप क्लियर करेंगे तो वो चीज़ आप रेंट आउट आपको मिलेगी। तो इसीलिए सारे सेलिब्रिटीज, सारे एंकर्स, सारे बैंकर्स सीनियर, सारे मल्टीनेशनल्स हैं, फॉरेनर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो ईमार या इस जैसे प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। जैसे नेवल हाउसिंग कॉलोनी है जमजमा की, आप देख लें, या कारसास पे नेवल हाउसिंग है, इस तरह की जो गेटेड है बाउंड्री वॉल में, जहाँ सिक्योरिटी है, मिलिट्री में आप देखें तो आपका ये जो मिलिट्री के जो ये बेस है आपका मलीर कैंट जी, इसको देख लें आप, मलीर कैंट की एग्जांपल आप देख लें, क्योंकि वो इतना सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। आप लोग अब कोई ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी और शहर में हैं, कंट्री में, आप रिलैक्स ऑफ माइंड के साथ जाते हैं कि मेरी जो फैमिली है, वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो सुकून में है, कोई मसला नहीं है ऐसा। जी हाँ। ऑलराइट, जैसे कि हमने बात की, ईमार टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर whatever they are going to deliver. ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करें, देन हाउ ट्रांसपेरेंट दे आर टू इन्फॉर्म द पीपल कि अब कोई अगर इशू आ रहा है तो हाउ दे आर गोइंग टू डील विद इट। We are a custodian of people's wealth. It is their hard-earned money. As a realtor, हम लोग उनके अमीन हैं, तो हमें उनको हर चीज़ बतानी भी चाहिए, और हर चीज़ उनकी बतानी भी इसलिए ज़रूरी है कि देखिए आप लोग कल को उसकी चीज़ रीसेल भी कर दी है, आपने उसको चीज़ दिला दी, अब वो मुझसे कह रहा है मुझे रीसेल करके दो, आपने कहा था इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, या रेंट पे दो,
तो फिर मैं उसके आगे अकाउंटेबल हूँ, मैंने उससे लाइफ टाइम रिलेशनशिप रखनी है अपने क्लाइंट से। तो अब अगर कोई चीज डिले हो रही है या कोई ऐसा अनफोर्सीन कोई चीज आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो ऑब्वियसली जैसे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, चाहे वो ईमार हो या दूसरे हो, दे ऑलवेज सिट एंड टॉक विद देयर कस्टमर्स एंड दे टेल देम द रीजन। अभी तक तो ईमार के अंदर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ऐसा कोई इशू आया नहीं। नहीं, obviously they have very nice apartments and they are very much, up to go with it, with the view and the safety. If you talk about, they are too good with it. They are giving you the lifestyle. लेकिन वही बात आपने की, it counts a lot when you say that you take care of the customer and आपसे उनका relationship जो है वो एक lifetime का होता है। बिल्कुल। अक्सर लोग ऐसा आपके पास आके बोलते होंगे कि I expect a very high return within a few years or something. उनको काफी जल्दबाजी भी होती है। So in your opinion, what advice would you give them कि आप जो है वो अपने अपार्टमेंट को रेंट पे लगा दें या फिर वेट करें कि उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो? देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, अगर वो रेंट आउट हुई है तो उसकी सेल वैल्यू बढ़ जाती है। ये नेचुरल है। क्योंकि जो बायर है वो दिखता है कि इतना अच्छा रेंट आ रहा है और टेनेंट भी बहुत अच्छा है, इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है या मल्टीनेशनल का एग्जीक्यूटिव है या फॉरेनर है कॉन्सुलेट का, तो कहता है इतना अच्छा टेनेंट है यार, तो मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। और टर्म्स भी अच्छे हैं कि वो 10 years के लिए लिया हुआ है उसने। जैसे अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने एक बैंक को दी हुई है और बैंक की रेपुटेशन ये है कि उसने कभी ब्रांच बंद ही नहीं की, जब भी खोली है वो सक्सेसफुल रहा है, आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे ना उस ओनर से। बिल्कुल। तो जब रेंटल यील्ड आ रही होती है तो हमेशा फायदा ही होता है। हाँ, अगर आप एक्सपेट्रिएट है, आप ओवरसीज है, आप अपने लिए रखना चाहते हैं बंद करके, दैट्स ऑल्सो फाइन कि मैं आऊंगा तो रहूंगा, और अगर अप्रिशिएट हो गया तो सेल करके दूसरा ले लूंगा, री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो आपको एक पॉकेट बनानी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब कोई शेयर मार्केट में जैसे जब कोई शेयर फ्लोट होता है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है 10 रुपए मिसाल के तौर पे, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल में 6 महीने में उसके रेट बढ़ते जाते हैं। तो रियल एस्टेट में जब आप प्री लॉन्च ऑफर्स लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। प्री लॉन्च ऑफर में आपको बहुत सारी चीजें वेव हो जाती हैं। वेस्ट ओपन के 10 लाख रुपए वेव हो गए, आपके हायर फ्लोर के जो है 2 मिलियन वेव हो गए। तो ये फायदे आप उठा सकते हैं उस स्टेज पे। बाकी देखें, रियल एस्टेट वाहिद चीज है जिसके साथ रियल का वर्ड लगा हुआ है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो गोल्ड के अंदर भी आप जब उसको सेल करते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी की कंपनी के शेयर्स लेते हैं, आपको फिजिकल तो उस कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती ना, वैसे तो आप ओनर होते हैं लेकिन पोजेशन नहीं मिलता आपको। वो इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी हैं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करके फिर वो रियल एस्टेट में फंड्स आते हैं, क्योंकि ये रियल इस सेंस में कि इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। एक आपकी प्रॉपर्टी लेके कोई भाग नहीं सकता, लेकिन आपका गोल्ड या कोई और चीज लेके लोग भाग भी सकते हैं, स्नैचिंग भी हो सकती है, चोरी भी हो सकता है, जो फैक्ट है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये आपकी प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई भी ये नहीं कर सकता कि आपके यार मेरे तो यार वो प्रॉपर्टी लेके भाग गया। तो इसीलिए इसको रियल एस्टेट कहते हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई अगर मिस्टेक्स कर रहा होता है, ठीक है, तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं? मतलब आप यू हैव मेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है, कौन सी ऐसी 3 से 4 बेसिक मिस्टेक्स हैं विच दे कैन अवॉइड? देखिए, या कोई ऐसा आपके पास केस आया हो जिससे कोई मिस्टेक हुई हो, एंड हाउ हैव यू गाइडेड देम? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मिस्टेक तभी होती है जब इंसान ग्रीड करता है, और जो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, और या जो थोड़े से इसमें गलत किस्म की भी प्रॉपर्टी में लोग फंस जाते हैं, उनका पूरी जो लाइफ टाइम का जो उनका लाइवलीहुड होता है, जो उनकी अर्निंग्स होती है वो निकल जाती है। रीजन ये होता है कि उनको बड़ी अट्रैक्टिव कोई ऑफर दे दी जाती है कि इतने कम इंस्टॉलमेंट पे आप प्लॉट ले लीजिए। गाइडेंस के हवाले से हम बात करें तो अट्रैक्टिव तो देखिए हर किसी को कोई चीज अगर लग रही होती है, बट गाइडेंस इज द मेन थिंग। गाइडेंस भाई, उसको अगर कोई सही से गाइड करे तो फिर वो then only they will feel कि हाँ भाई मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल। जा देखिए, होता है क्या है कि अगर हम कोई ड्रेस भी खरीदते हैं तो फिर हमें शॉपकीपर तो गाइड कर रहा होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से वो शर्ट या वो चीज लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप येलो कलर की शर्ट सोच के जाती हैं, लेकिन आप ब्लू खरीद के आ जाती हैं। तो माइंड भी चेंज होता है वक्त के साथ। तो आपको अगर सही आपको गाइडेंस मिल जाए और आपको सही रियल्टर मिल जाए, तो वो ऑब्वियसली आपको बता सकता है कि आपके लिए ये नहीं, ये ज्यादा बेहतर है, ये आपको ज्यादा सूट करेगा। वो प्रोजेक्ट आपको लग तो रहा है कि आपको कम पैसों में मिल रहा है, लेकिन उनकी पास्ट हिस्ट्री ये आप फंस जाएंगे।
हो सकता है आपको मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है आपको 10 साल और वेट करना पड़े। तो लाइफ में आपकी जो टाइम पीरियड है वैसे ही शॉर्ट होता है। उसमें आपकी रियल एस्टेट में तो आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत मैटर करती है कि किस वक्त आपने एंट्री ली उस प्रॉपर्टी में और किस वक्त आप एग्जिट हो रहे हैं। और फिर एग्जिट होने से पहले आपके पास रिप्लेसमेंट भी होनी चाहिए। अगर मैं प्लॉट बेच रहा हूँ तो मेरे पास रिप्लेसमेंट हो कि मैं बेच के ये प्रॉपर्टी लूंगा। Alright. क्योंकि अगर आपने वो चीज, मैं आपको अपनी एक लाइव एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ। मेरे फादर ने बैक इन लेट 90s एक प्लॉट लिया फेज 8 में 16 लाख रुपए का। पाकिस्तान ने जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया 2001 में या प्रोबेबली 99 में, तो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा बैंड लग गया चीजों पे। तो हमारे क्या हुआ कि प्लॉट की प्राइस 9 लाख पे आ गई मुर्तजा कमर्शियल पे, पुरानी बात बता रहा हूँ। तो फिर अचानक हालात सही हुए, वो प्लॉट 26 का हुआ, फिर 28 में फादर ने बेच दिया। फादर उस तक 9/11 हुआ था, पूरे पाकिस्तान में फंड्स आ रहे थे, मगर फादर उसको सेल करके रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढी उन्होंने। ही वेंट ऑल द वे फॉर द हज पिलग्रिमेज। व्हेन ही केम बैक आफ्टर 40 days, वही प्लॉट 1.25 करोड़ का था एक महीने के अंदर। क्योंकि 9/11 के बाद उस पर कोई भी नहीं बेच रहा था। somehow बीइंग अ ह्यूमन ही हो जाती मिस्टेक, जान के तो कोई नहीं करता। लेकिन आज वही प्लॉट अगर होता तो वो 14 करोड़ का है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 decades आप कह लीजिए। तो उस एक महीने के अंदर हमने 1 करोड़ का लॉस किया उस जमाने में। उस वक्त 1 करोड़ में आपका 1000 गज का बंगला आ जाता था वेरी इजी। तो सिर्फ इस वजह से कि वो बेचारे थोड़े घबरा गए, उनको रियल्टर ने गलत गाइड किया, बेच दीजिए फिर नीचे आ जाएगा। आपने 16 का लिया था, 28 का हो गया, आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं अपना 1 साल के अंदर, बेच दीजिए। वो बेचा, उनकी 2 दिन बाद फ्लाइट थी, वो हज पे चले गए। 40 days बाद आए तो 1.25 करोड़ का था, फिर वो रुका ही नहीं उसके बाद, क्योंकि वो इतनी पूरी दुनिया से फंड्स आ रहे थे और उस वक्त जो लोग थे वो रोक के बैठे हुए थे, कोई नहीं बेच रहा था। All right. इस एग्जाम्पल से there is a very important question that came to my mind. How important is emotions, or how do you take care of your emotions while you are trying to invest in real estate? जैसे आपने अभी कहा कि इमोशन में आके उन्होंने कहा कि भाई मुझे नीड है या आई वांट टू डू दिस, उन्होंने बेच दिया। कोई भी एक आम इंसान है, उसे अगर पैसों की नीड होती है, ठीक है, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे आर गोइंग टू सेल इट, ठीक है, बट किसी के बहकावे में आके नहीं, ठीक है। इफ दे हैव टेकन द डिसीजन देमसेल्व्स, देन दैट इज, ये बहुत अलग चीज हो जाती है फिर, ठीक है ना। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हाइल यू आर इन रियल एस्टेट? वेरी गुड क्वेश्चन, बाइंग एंड सेलिंग। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको अपनी एक क्लाइंट का बताता हूँ कि उनका बेटा जिद कर रहा था कि मुझे लेटेस्ट गाड़ी चाहिए। ये बात पुरानी बता रहा हूँ आपको, कोई 10 years या 12 years पुरानी। तो उन्होंने अपना जो, उनको मैंने समझाया भी कि आप अपना ये जो प्लॉट है ये नहीं बेचिए, ये अभी आपका प्लॉट 2 करोड़ का है, ये आगे बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, बेटे को चाहिए और हमें 2 गाड़ियां खरीदनी है और वो 20 million चाहिए हमें। उन्होंने अपना प्लॉट अपने बेटे के बातों में आके सेल किया। वही प्लॉट आज अगर मैं उस प्लॉट की वैल्यू बताऊं आपको तो तकरीबन वो 18 करोड़ का है। तो शी लॉस 16 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 12 years। और अब जो गाड़ी ली थी उन्होंने, वो शायद आधे पैसों की भी नहीं है। तो उस वक्त वो इमोशनल हो गई, वो कि अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करनी है, वो बहुत जज्बाती हो रहा है कि मुझे ये 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर वो उसको थोड़ा एजुकेट कर देती कि तुम्हारे भले के लिए ये, आज वो 18 करोड़ की प्रॉपर्टी होती, वो सेल करती, वो गाड़ी भी ले सकती थी और वो प्रॉपर्टी में भी री इन्वेस्ट कर देती थी। अब वो अपनी रिग्रेट करती है। तो होता क्या है कि आपने क्वेश्चन किया कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, तो कभी कभार फैमिली प्रेशर आ जाता है। उसमें ये होता है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, ही शुड बी वेरी pragmatic, he should be very sensible in taking decision. Even अगर आप किसी भी स्टॉक में भी लगाते हैं तो आप बैलेंस शीट तो देखते हैं कि मैं इसके शेयर्स क्यों खरीद रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी जो इतनी फास्ट, जिसमें प्राइस इंक्रीमेंट होती है और इतना तेजी से अप्रिशिएट होती है, तो उसमें तो सारे फैक्टर्स देखने चाहिए। तो अब मिसाल के तौर पे फेज 8 है, आज भी फेज 8 जो है उसकी वैल्यू अभी जो मैं देखता हूँ बहुत बढ़ेगी आगे चल के। रीजन बीइंग कि यहाँ पर अभी भी कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ पे प्लॉट्स आपको 500 गज के प्लॉट भी आपको बहुत रीजनेबल मिल रहे हैं। जैसे कोस्टल स्ट्रीट पे आपको 6 करोड़ में भी मिल रहा है, 5.5 करोड़ में भी मिल रहा है। तो 500 गज का प्लॉट इतनी अच्छी प्राइम लोकेलिटी पे आज भी आपको अफोर्डेबल रेट्स पे मिलता है, जो कि आपको दूसरे पार्ट्स में कराची के शायद इससे भी महंगा मिले। तो फेज 8 में पोटेंशियल मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ पैच ऐसा है जो अभी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गया है, कुछ पैच में अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत गुंजाइश है। तो जो समझदार लोग हैं, जो एक्सपेट्रिएट्स हैं या जो लोकल्स हैं हमारे यहाँ पे जो रहते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। वो जैसे ही उनके पास फंड्स होते हैं वो कोई चीज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि क्या होनी है। अगर 5 मिनट की ड्राइव पर एक प्लॉट आपका 11 करोड़ का है और 5 मिनट की ड्राइव पे उसी फेज में वो 5 करोड़ का मिल रहा है, तो 6 करोड़ का गैप फिल होना है।
वो हो सकता है और ऊपर चला जाए, लेकिन इसने भी वहां तक आना है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखिए, और इस वक्त जो ट्रेंड है, मैं सबको फेज 8 करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, और अगर किसी का पॉकेट साइज अच्छा है तो ईमार सजेस्ट करता हूँ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई डू पीपल प्रेफर to buy a land rather than to invest in an apartment? What is the reason? देखिए, अब ये फैक्ट जो है ना, ये ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कराची में इस वक्त वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। और देखिए रीज़न क्या है, आप बात को समझिए। मैंने देखा अभी बारिशें हुई आपके सामने, चंद दिनों की बारिशें थी, बहुत बड़े बेंगलोर्स में मैंने देखा लोगों के पास जनरेटर भी थे, किसी का जनरेटर ट्रिप हो गया, किसी का कोई इशू हो गया। मैं कम्युनिटी के ग्रुप्स में भी ऐड हूँ, तो मुझे पता है लोग कितने प्रॉब्लम से गुजरे हैं, और वो अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन इतनी बारिश में वो टेक्निकल लोग नहीं आ पा रहे थे ठीक करने, और वो जनरेटर के बगैर, बिजली के बगैर 2000 गज के बंगले में बैठे हुए। ये भी हुआ है। लेकिन अब जैसे कम्युनिटी लिविंग कोई भी हो, क्रीक विस्टा हो या जैसे इमार है, तो उसमें जो खास तौर से इमार में जो लोग थे, वो मैंने देखा बहुत रिलैक्स थे बारिश से। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि यार बंद हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि बारिश ना हो। वो तो एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो सारी टेंशन जो है वो उनकी मेंटेनेंस वालों ने, उनकी जो कॉन्सियाज है, उनके जो पूरी कम्युनिटी लिविंग की जो मेंटेनेंस की टीम है, उनके सर था। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सारी चीज़ें, HVAC इंस्टॉल्ड है, जनरेटर इंस्टॉल्ड है, लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट स्मूथली आपकी चल रही है, कोई आपको ये टेंशन नहीं थी। सिक्योरिटी वाइज यू आर गोइंग टू बी एट पीस इफ यू बाय एन apartment, because वहाँ पे you don't need to take care of each and everything. You just need to sit back and relax, and the rest of the stuff is going to happen themselves. I have seen people, they have big houses and they have rented out those houses, and they have buy another an apartment in Imar, and they are living there. They shifted there to Imar. Or either they have also shifted on rent. While they have given their own property. Different scenario. Like for example, if you have a house, you give that on rent, and you yourself you go to an apartment and live over there. For a peace of mind, you are sitting in front of a paddle court, you are enjoying the beach at night with your family. Everything is there, the atmosphere, everything that you dream of. So basically, you are under one roof. If you buy an apartment in that's what I feel. All right, and आपको हर चीज जो है वो one roof के अंदर मिलती है, whether it's the pool, whether you have the penthouse or whether you have a one bed apartment, it's the same. Even if you buy a one bed apartment, you enjoy all the luxuries, all the amenities that a penthouse person is enjoying. You became part of it. You are not only getting that apartment, you are getting all the lifestyle. So you are a part of community if you buy an apartment. That's what I feel. In your opinion, the apartment is much more safer. It has been 18 years for me that I have been a realtor. Technically speaking, while I was in bank, I was also I became realtor at that time actually. So I was evolving with the passage of time. So now I have realized that the ground realities has changed, and people are more wise. They are more aware of each and everything. Of course, makes sense. Yeah, it makes sense. Acha, you have a lot of collaboration with banks as well. तो अगर कोई इंसान है जिसे कुछ हेल्प की नीड है, whether it's a bank loan, whether you give your installment plans, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो व्यूअर्स को गाइड कर दें. Actually, when you buy a property, an off-plan property, आपको bits and pieces में पे करना पड़ रहा होता है, तो उस पर आपको बहुत फायदा मिल जाता है. मैं फिर से इमार की मिसाल दूंगा. इमार की अभी एक ऑफर चल रही है कि जी 10% पे आप यूनिट लॉक कीजिए और 25% आप पोजेशन पे दीजिए, तो एक अच्छी हेफ्टी अमाउंट आपकी पोजेशन पे चली जाती है. तो आप ड्यूरिंग पेइंग इंस्टॉलमेंट्स यू कैन फ्लिप, यू कैन टेक प्रीमियम एंड यू कैन एग्जिट, यू कैन अपग्रेड योर अपार्टमेंट. तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाती है. अब आ जाते हैं बैंक लोन के ऊपर. देखिए, बैंकर्स सारे हमसे राब्ते में होते हैं और बैंक भी हम सजेस्ट करते हैं कौन सा बैंक फास्ट है, जल्दी कर देगा. तो जो अच्छे बैंक्स हैं सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रा स्पीड अच्छी है, उनकी सर्विस थोड़ी और बेहतर है, तो फिर वो हम सजेस्ट करते हैं आप इधर जाइए. और वो बैंकर भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और फिर वो उनको पूरा लोन अप्रूव करा के कोलैटरल रखते हैं उस प्रॉपर्टी को, और उसके अगेंस्ट आपको फाइनेंस करते हैं. आप उसको इंस्टॉलमेंट करते हैं या आप रेंट आउट भी कर सकते हैं. सो इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू डू एन इन्वेस्टमेंट, इवन इफ दे हैव लेस अमाउंट. One has to look at the realtor about his integrity also. Who is the person from whom you are buying it? Yes, because आप अपनी पर्सनल बातें तो आप अपने सिबलिंग से भी शेयर नहीं करते कि मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या है, लेकिन हमसे वो शेयर करते हैं क्योंकि उनको इसलिए करना पड़ता है कि उनको so that you can guide them well. Yes, कि we have this much of funds, so you have to find something good for us in this amount. This is a very big responsibility, by the way, and it's very tough as well. क्योंकि आप लोग इसमें थोड़ा सा भी जो है वो मिस्टेक होती है तो फिर वो the trust that you have with your clients, that's going to and be he will breached. never come back to you, and he will tell others also, so you will hit your reputation. एक और सवाल है,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो 10% दे के लॉक तो हो जाती है आपकी डील, बट आगे जाके व्हाट हैपेंस इज दे आर अनएबल टू पे, या वो आपसे ये कहते हैं कि वी वांट टू विदड्रॉ, हमें आगे वी डोंट वांट टू गो फर्दर। तो फिर ऐसे क्लाइंट्स के साथ आप क्या करते हैं? देखिए जी, बहुत गुड क्वेश्चन आपने किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी एक हार्ड एंड मनी लगा रहे होते हैं, तो आपको ये क्लॉजेस पढ़ने चाहिए। हर बिल्डर डेवलपर के अपने क्लॉजेस होते हैं। कोई 20% डिडक्ट करता है, कोई 10% डिडक्ट करता है और आपकी रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस कर देता है। अच्छे डेवलपर जो है वो पूरी अमाउंट भी वापस कर देते हैं, और कुछ जो अच्छे डेवलपर हैं तो वहाँ पे रीसेल इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि आप उल्टा प्रॉफिट में आप सेल कर रहे होते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भी दे पा रहे फ्यूचर में, तो आपको और अप्रिशिएटेड अमाउंट में आपको मार्केट से ऑफर आ रही होती है कि जी इतने में हमें दे दें आप, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है, यूनिट नहीं मिल रहा होता। तो जैसे ही रीसेल में आता है तो वो आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफर करते हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम जैसे अब 1 साल हो गया इंस्टॉलमेंट देते हुए और या 2 साल हो गए और अब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है उसकी प्राइस बहुत अप्रिशिएट हो गई हो, अब डेवलपर के रेट्स बढ़ गए हो, तो वो आपसे लेने को प्रेफर करेगा ओपन मार्केट में कि आप मुझे दे दीजिए और मेरा नाम ट्रांसफर करा दीजिए डेवलपर के पास जाके। तो अगर रेपुटेशन अच्छी है, डिमांड अच्छी है, तो देन यू डोंट हैव टू वरी, बट अदरवाइज यू हैव टू लुक इनटू इट। लास्ट क्वेश्चन, इफ यू लुक एट द फ्यूचर ऑफ कराची इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है विच द इन्वेस्टर्स नीड्स टू चेंज व्हेन दे आर बाइंग some stuff, या next 5 years के अंदर how do you see DHA area और E8 area जहाँ पे इमार है, how development is going to take place? Actually, things are getting better every passing day. I'm very optimistic person, and I'm always look at the positive side. As you have seen that DHA has done a remarkable job. DHA has beautified Bukhari commercial, then the phase 2 market, that is A market. Then we have seen Ittihad commercial. Then we have seen phase 8 Creek Walk. Then now the Creek side before Golf Club on the Zulfikar Street one. So DHA is continuously giving you the best, and I really hats off to them, to the DHA especially. The recent development of Abdus Sattar Road, which connects to Imar. That's correct. All right, it's remarkable. Yeah, they have made it very beautiful. Because Imar being a developer, they are doing their best, but with the support of DHA, it increases the chances of appreciation. So जब से क्रीक वॉक खुली है, जब से आपका जुल्फिकार एवेन्यू और ये पूरा मॉडिफाई हुआ है, इसको ब्यूटिफाई हुआ है, आप यकीन करें वहाँ 15 से 20% अप्रिशिएट हो गई है, क्योंकि एक एम्बियंस क्रिएट हो गया है ना। इट्स लाइक अ कम्युनिटी। आप जाते हैं रात में, वहाँ म्यूजिक हो रहा है, लोग फैमिलीज बैठी हैं, ऐसा लगता है सब एक ही फैमिली है। हालांकि मुख्तलिफ लोग होते हैं, लेकिन एक फीलिंग ऐसी आ रही होती है कि म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कोई कहीं से फूड ले रहा है, आपको इतनी वैरायटी मिल रही है उसमें, आप जो मर्जी खाना खाओ, हर टाइप का, पाकिस्तानी फूड है, इंग्लिश फूड है, चाइनीज है, तो थाई फूड है, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। जैसे दुबई में हम जाते हैं तो दुबई में जब फेस्टिवल लगता है, ग्लोबल विलेज होता है, वही वाला मॉल मुझे थोड़ा सा फील होता है, स्पेशली फेज 8 में। सही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करेंगे। यू जस्ट नीड टू आंसर देम इन वन लाइन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, ठीक है? अगर यू नीड टू पिक अप वन ड्रीम लोकेशन इन कराची, ओके, वन ड्रीम लोकेशन, व्हाट वुड इट बी? It would be Imar. Absolutely, I think I do agree with that, because जब से मैं वहाँ पे गई हूँ and I've seen over there, it's really very beautiful. Apartment or villas, which one you prefer? I would suggest apartment. All right, like we discussed earlier, one thing every investor must check before buying. The reputation of the developer. Exactly. Karachi's real estate in one word. Karachi real estate has a very bright future. All right. Your go-to advice for first-time buyers? The first-time buyers that I have noticed, they are mostly in the age bracket of 30 to 45 years of age. By that time, they came into a position that they can buy an apartment or a plot. So for them, it is very important to guide them and to know that what exactly they are looking for. Are they the end? Are they वो लोग मतलब के end user हैं, या वो लोग जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं? Alright. तो उसके हिसाब से फिर उसको सजेस्ट करना है। अच्छा, अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते, then what career path would you choose? I would love to become an actor. Okay. Yeah. Okay. All right. One habit that made you successful? My love for the real estate. All right. Yeah. Your favorite Imar project right now? Park Edge. Thank you so much for being with us. It was lovely to talk to you. Thank you so much. अगर कोई भी इंसान है who wants to invest
in property. So these, some insights that you have shared, I hope कि वो उनके लिए useful हो सके. Thank you so much. Thank you so much.